کراچی والے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہر گھنٹے میں اسٹریٹ کرائم کی 10 وارداتیں، 45 دن میں 11,000 جرائم کے واقعات رپورٹ، یومیہ شرح 244 ہو گئی۔ عام شہری تو کیا، پولیس اہلکار اور صحافی تک محفوظ نہیں۔ سفاک ڈاکو مزاحمت پر جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ 1.5 ماہ میں مزاحمت پر 13 شہری جان سے گئے، فائرنگ سے 80 زخمی۔ قانون نافذ کرنے والے کہاں ہیں؟ مجرموں کا گھیراؤ کون کرے گا؟ سوال اٹھنے لگے۔ کراچی میں ڈاکو نے سینئر صحافی اطہر متین کی جان لے لی۔ نارتھ ناظم آباد میں گاڑی پر گولیاں برسائیں۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان شہری کو لوٹ رہے تھے، ایک گاڑی نے تیزی سے ٹکر ماری۔ فوری بعد آنے والے صحافی اطہر متین نے بھی ملزمان کو ٹکر مار کر گرایا۔ ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی نے تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل خضدار سے خریدی گئی۔ پولیس نے بائک کے مالک جہانگیر کو حراست میں لے لیا۔ سویم تک مرکزی ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو دھرنا دیں گے۔ مقتول اطہر متین کے بھائی طارق متین کی وارننگ۔ وزیر اعظم عمران خان کی اطہر متین کے قتل کی شدید مذمت، قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کی مذمت، کہا کسی کو کراچی کا امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کراچی پھر آگ اور خون میں کھیل رہا ہے، بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار افسوس، ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کرائم کی وارداتوں میں کمی نہ ہونے کا اعتراف، کہا بڑے شہروں میں کرائم ریٹ 0 نہیں ہو سکتا۔ ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم، اسد اللہ خان کی بطور ایم ڈی تقرری کا 11 جنوری کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ عدالت نے حکم واٹر بورڈ کے سینئر افسر اسلم آوان کی درخواست پر جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا او پی ایس کی بنیاد پر ایم ڈی کی تعیناتی میں عدالتی احکامات کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کی جانب سے ایسا کیا جانا بدقسمتی ہے۔ اشتہار دے کر 2 ہفتے میں نئی تقرری کا حکم۔ نواز شریف کو باہر بھیج کر غلطی کی، چوروں کا ٹولہ عدم اعتماد کی باتیں کر رہا ہے۔ قوم کا پیسہ واپس لینے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا، چوروں کا مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا منڈی بہاؤدین میں جلسے سے دھواں دھار خطاب، کہا اپوزیشن کا جو بھی پلان ہے کپتان تیار ہے۔ فضل الرحمان ان کو ڈرا رہا ہے کہ عمران خان کو جلدی گرا دو ورنہ اگلا الیکشن بھی گیا۔ مریم بی بی بھی کیس سے ڈری ہوئی ہیں۔ شہباز شریف اگر تم واقعی بہادر ہو تو عدالتوں کا سامنا کرو۔ امریکہ اور برطانیہ میں مہنگائی زیادہ ہے، یقین نہ آئے تو گوگل کر لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مہنگائی بالکل ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ عوام پر بوجھ کم سے کم آئے۔ کرونا کے بعد پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی، چیزیں مہنگی ہو گئی۔ دنیا میں پیٹرول، گھی، کوئلہ، تیل، گیس سب کی قیمتیں دوگنی ہو گئیں۔ ملک صحیح راستے پر چل پڑا ہے، ایکسپورٹ ریکارڈ پر ہے۔ مارچ کے آخر تک پنجاب کے ہر خاندان کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ 3 سال تو وہ کہتے رہے کہ ماضی کی حکومتیں مہنگائی کی ذمہ دار ہیں۔ اب پتہ چلا ہے 3 سال کے بعد اعظم صاحب کو وہ ذمہ دار نہیں ہے، پوری دنیا ہی ذمہ دار ہے۔ دنیا کی سازش ہے عمران خان کے خلاف۔ وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار وہ نہیں، ساری دنیا ہے۔ کیا عمران خان کے خلاف عالمی سازش کی جا رہی ہے؟ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا طنز، کہا کرپٹ ترین لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ عدم اعتماد کے خلاف وزیر اعظم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ آج عدم اعتماد کا راستہ جتنا ہموار ہے ماضی میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ محسن بیگ سے نہیں، ہمیں مراد سعید سے ہمدردی ہے۔ مراد سعید کی عزت اچھالی گئی، معاملہ پارلیمان میں آنا چاہیے تھا۔ اپوزیشن کہتی ہے عدم اعتماد لے کر آئیں گے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ان کے تو گھر والے بھی ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ فواد چودھری کا جلسے سے خطاب، کہا بیٹی کیس بھگت رہی ہے، باپ اور بیٹا لندن میں بیٹھے ہیں، مدرسے کے بچوں اور نان قیمے پر جلسے نہیں ہوتے۔ اپوزیشن والے منڈی بہاؤدین آ کر دیکھیں، جلسے یہ ہوتے ہیں۔ فاروق حبیب بولے
शहबाज शरीफ ने फर्द जुर्म से बचने के लिए नई दरख्वास्त दायर की। टोपी ड्रामा छोड़ें और हिम्मत करके कहें केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। तहरीक अदम एतमाद का वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी असम्बली का इजलास आज मेरी वजह से मुलतवी किया गया। ये समझ रहे थे कि मैं अदालत में इजलास का बहाना बनाऊंगा। हुकूमत का इरादा था कि चार्ज फ्रेम कराएं, लेकिन अल्लाह मालिक है। हमजा शहबाज की भी हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इनका बोरिया बिस्तर गोल करने के लिए अपोजिशन ने कमर कस ली है। हुकूमती इत्तेहादियों से गुजारिश है हमारा साथ दें। आपने अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुअख्खर। अदालत ने अबूरी हुक्मनामे में लिखा केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर था। शहबाज शरीफ ने चालान की वाज़ेह कॉपियाँ न होने का एतराज़ उठाया। शरीक मुल्ज़िम उस्मान ने अदालती दायरे इख्तियार पर एतराज़ लगाया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ गुस्से में आ गए। कहा FIA के वकील से कहा मैं अदालत से बात कर रहा हूँ, आप दरमियान में मत बोलें। शहबाज शरीफ के हामी वकला ने भी हंगामा आराई की। HBL PSL 7 में कराची किंग्स की पहली कामयाबी। रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए किंग्स ने कलंदर्स को 150 रन का हदफ दिया। लाहौर की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बना सकी। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कौमी लीग की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर 245 रन बनाया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 117 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। कप्तान रिजवान ने 83 और रोसो की 71 रन की बर्फ रफ्तार इनिंग्स। रोसो प्लेयर ऑफ द मैच करार। कोयटा की प्ले ऑफ मरहले तक रसाई मुश्किल में पड़ गई। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। पुलिस पर फायरिंग, तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत। मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरखास्त दायर नहीं कर सकता। मोहसिन बेग के खिलाफ FIA कराची में भी मुकदमा दर्ज। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में अटॉर्नी जनरल ने कहा मोहसिन बेग केस में एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया जा रहा। जज के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अपील रियासत का हक है। फैसल वाडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उजलत में अपील खारिज की। नाअहली का फैसला कलअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। बहुत जल्द इमरान खान और नवाज शरीफ लंदन में क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा PTM और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया। अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद सेनेट में हुकूमत ने बिल मंजूर कराए। कौम के नौजवान लंगर खाने नहीं कारखाने चाहते हैं। हुकूमत IMF से मुआहिदा नहीं तोड़ सकती तो घर चली जाए। कराची में डाकू आज़ाद। लियाकताबाद में 4 कम उम्र मुसल्ला डाकू ने पकवान सेंटर का सफाया कर दिया। मास्क लगाए 3 मुल्जिमान सेंटर में दाखिल हुए। एक साथी असलहा ताने बाहर पहरा देता रहा। मुल्जिमान इत्मीनान से मोबाइल फ़ोन्स और पैसे लूट कर चले गए। मंजूर कॉलोनी में बैंक से निकलने वाला शहरी 5 लाख रुपए से महरूम कर दिया गया। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान ने रकम छीनी और चलते बने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बेल्जियम के वजीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़ौजी ताल्लुकात, दिफाई पैदावार बढ़ाने पर इत्तेफाक। बेल्जियम की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाक अफवाज की पेशा वाराना महारतों को सराहा। शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान। बिल गेट्स का दौरा पाकिस्तान के बाद ट्वीट। लिखा इमरान खान से मुलाकात में नतीजा खेज गुफ्तगू पर उनका शुक्रगुजार हूँ।
पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के आज़म की हौसला अफजाई करता हूँ। उम्मीद है हम जल्द पोलियो को ख़त्म कर देंगे। तुर्की के वज़ीर मजहबी अमूर के शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। 18 रुकनी तुर्क वफ़द का बादशाही मस्जिद का भी दौरा। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक़ क़ादरी भी हमराह थे। तुर्क वज़ीर आला अली अरबाश का जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा से खिताब, कहा आज आलम इस्लाम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। तारीख़ी बादशाही मस्जिद में खिताब एज़ाज़ की बात है। वज़ीर आला पंजाब आज 3 रोज़ा दौरे पर दुबई रवाना होंगे। उस्मान बुज़दार मुबारक सेंटर की तामीर की बहाली के मुआहदे के मेहमान खुसूसी होंगे। धाबी ग्रुप के आला हुकाम से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर में मुबारक सेंटर बनने से तिजारती और मौशी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, पंजाब में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कौमी एयरलाइन का बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से परवाज़ों का आगाज़। PIA 26 फरवरी से कोयटा और तुर्बत के दरमियान परवाज़ें शुरू करेगी। परवाज़ों का फैसला दुश्वार पहाड़ी इलाके के शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए किया गया। हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा भारत की दीगर रियासतों में फैल गया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में भी हिजाब पहनी तालिबात को क्लास में दाखिले से रोक दिया गया। रियासत कर्नाटक में टीचर ने कॉलेज में हिजाब उतारने के हुक्म पर इस्तीफा दे दिया। बरतानिया में तूफ़ान यूनिस से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लीड्स और ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मुअत्तल। तेज़ हवाओं के बाइस परवाज़ों की लैंडिंग नामुमकिन। कई तैयारे मुतबादिल हवाई अड्डों पर उतारे गए। ट्रैफिक का निज़ाम भी तलपट हो गया। अंपायरिंग के साथ साथ छोटी छोटी शरारतें। कोयटा और मुल्तान के मैच के दौरान अलीम डार की खुश मिजाजी, पहले अनोखे अंदाज से गेंद उठाई और फील्डर को थमाई, फिर दहानी विकेट उड़ाकर भागे तो शगुफ्ता मिजाज अलीम डार पकड़ने के लिए आगे बढ़े। दहानी पैंतरा बदलकर काबू में आने से बच गए। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और उनके बेटे कमील शाह बने मेहमान। वसीम बादामी के साथ खेला मासूमाना खेल। नासिर शाह और उनके बेटे पॉइंट्स टेबल पर रिकॉर्ड न तोड़ पाए। अब तक सबसे ज़्यादा 6.6 का स्कोर बुशरा अंसारी का है। शो में यूनुस खान और तनवीर अहमद के तज्जिए, मुस्तफ़ा चौधरी, आतिफ और आदि ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,27,102 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,897 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 89 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,241 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 224 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है।